Shalom, God bless you. शालूम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। Keep sharing this. और ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर कीजिएगा। Keep sharing this. Hallelujah. हालेलुया। Father, in the mighty name of Jesus, we come to you. We thank you, Father, for this great time. In this evening, we are gathered to learn more about you, Jesus. Give us understanding. Give us wisdom to know your word. Father, this is a time, teach us and lead us in your ways. In these times, we are grateful for your Son Jesus and the Holy Spirit who guides us and teaches us. Father, we come to you. We open our hearts, mind, and spirit. Teach us, lead us in your ways. Let this teaching bless our lives and give us more understanding about you. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे Keep sharing this. और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। So, as you know, I was teaching a subject called the Kingdom Series. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बादशाह की सीरीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। So today I will teach about the Kingdom Keys. और आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका उन्वान है बादशाही की कुंजियाँ। Just let me know the voice is clear. और अब मुझे जानने दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। Just type the voice is clear. और लिखिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है। If the voice is clear, please type the voice is clear. अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो बराए मेहरबानी लिखिएगा कि आवाज़ क्लियर है। I think they say voice is not clear. It's low, right? Maramashi. So let me start. और हम शुरुआत करते हैं। So the voice is clear, but it is low. So just increase your volume of your mobile phone. और बराए मेहरबानी अपनी फ़ोन के Or वॉल्यूम you को can ऊंचा use- कीजिएगा। Or you can use the hand freeze. So let's read one scripture, book of Matthew, और कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील chapter 16 और उसका 16 बाब and verse number 16. 16 बाब उसकी 16 आयत हम देखेंगे। Hallelujah. 16, the same scripture. और वही हवाला So the Bible says, और कलाम कहता है Matthew 16
verse 16. The Bible says, और कलाम कहता है, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and unto this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. शिमोन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमोन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझसे जाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं उस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पे बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। Amen. So let's start. और हम शुरू करते हैं। As you know, this is a scripture. We start our this topic concerning the kingdom keys. और जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाही की कुंजियों का जो उन्वान है, उसके शुरुआत से ही हम इस हवाले के बारे में बात कर रहे हैं। So this is a scripture और ये वो हवाला है where Jesus is mentioning a kingdom keys. और जहाँ पर यीशु मसीह आसमान की बादशाही की कुंजियों की बात कर रहे हैं। So there is an importance of a keys in the kingdom. और बादशाही में कुंजियों की क्या अहमियत है। So every lock और हर एक ताला carry a key. अपनी चाबी रखता है। If there is a lock, और अगर कोई ताला है, there must be a key to open that lock. तो फिर उसकी चाबी जरूर होनी चाहिए उसको खोलने के लिए। Are we together? क्या मेरे साथ है? Now listen. सुनिएगा, Every lock हर एक ताला have a purpose उसका कोई मकसद है to control the house. कि उस घर को वो कंट्रोल कर सके। So every lock, और हर एक ताला, so you can say the lock is a question और आप कह सकते हैं कि एक ताला एक सवाल है and the key is an answer. और चाबी उसका जवाब है। And when you insert the key और जब आप चाबी उसके अंदर डालते हैं and you just turn that around the key, और जब आप उसको खोलने के लिए घुमाते हैं, and what happens? तो फिर क्या होता The है? lock unlocked तो फिर जो ताला है वो खुल जाता है and you enter to that room or that house. और आप फिर उस कमरे में या उस घर में दाखिल हो सकते हैं। So the importance of key is very important. और जो अहमियत है उस चाबी की वो बहुत अहम है। So in the life of believer, और एक ईमानदार की जिंदगी में you must understand the keys of the kingdom. तो आपको समझना चाहिए बादशाही की कुंजियां। So there are many keys. और बहुत सी कुंजियां हैं। In the last class, और जो गुज़िश्ता क्लास गुजरी I teach you और मैंने आपको सिखाया about the keys. और मैंने इन चाबियों के बारे में आपको सिखाया। So we discussed the key of revelation. और हमने मुकाशफा की कुंजियों के बारे में बात की। We discussed the key of revelation. और हमने मुकाशफे की कुंजी के बारे में बात की। Yes, the key of revelation. और मुकाशफे की कुंजी। Today I will share another key. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक और चाबी Today की। I will share another key. और आज हम एक और कुंजी के बारे में बात करेंगे। What is that key? और वो कुंजी क्या है? Before I start, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, I just want to let you know और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ the importance of the key. और अहमियत है जो एक चाबी की। So in the house, घर के अंदर there is only one person और एक शख्स होता है who carries the key जो कि चाबी अपने पास रखता है of the house. घर की। That person और वो शख्स carries an importance in the house. और वो शख्स उस घर में बहुत अहमियत का हामिल है। So the person carry importance. और वो शख्स अहमियत का हामिल है। Why? क्यों? Because क्योंकि of the key.
उस चाबी की जो वो रखता है उसकी वजह से, Why this person is important? और क्यों है वो शख्स बहुत अहमियत का हामिल, Because of the key. क्योंकि उस चाबी की वजह से। So every person हर एक शख्स in the house घर के अंदर have value. उसकी कोई ना कोई अहमियत है, But there is something called a father और कोई है जिसे हम कहेंगे बाप, who carries the keys of the house. और वो रखता है अपने पास उस घर की चाबियां, So the key represent authority and power. और जो चाबी है वो इख्तियार को जाहिर करती है। So now in this scripture, और इस हवाला में भी Jesus is saying unto Peter, और यीशु मसीह जो मुखातिब है पतरस के I साथ, am giving you the key. कि मैं तुम्हें चाबियां देता हूँ, So कुंजियां you देता will हूँ, bind कि तुम बांधोगे in heaven आसमान पर and in earth, और जमीन and पर, you will loose और तुम खोलोगे in earth और जमीन पर and in heaven. और आसमान पर। There is a key there. और वहां पर एक चाबी है, Who is the person? और कौन है वो शख्स? That is the Peter. और वो है वो पतरस। Jesus is giving the key to Peter. और यीशु मसीह वो चाबियां देने को है पतरस को, So there is an important thing in it. और इसके अंदर एक अहम चीज है। So every person हर एक शख्स in the house घर के अंदर is important. बहुत अहमियत रखता But the है, most important person who carries the key. लेकिन सबसे अहम है वो शख्स जो जिसके पास वो चाबियां हैं। So are you listening me? Those who Yeah. are watching me live, are you listening me? और जितने लोग भी मुझे बराह रास्त देख रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Now listen. सुनिएगा, Every person who have the key, और जो शख्स भी चाबी रखता है, it means इसका मतलब है, that person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतमाद है, That person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतबार है, That person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतबार है, That person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतबार है, That person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतबार है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. सुनिएगा, That person is trustworthy. और वो शख्स काबिल एतबार है। You will see in the school. स्कूल में आप देख सकते हैं, There is a big school, और एक बड़े स्कूल में and now there is a person वहाँ पर कोई शख्स है, who carries the keys of the school. और पूरे स्कूल की चाबियां उस शख्स के पास होती And हैं, that means that person is a trustworthy person. और इसका मतलब है कि वो काबिल एतबार शख्स है। Why? क्यों? Because he carries trust things. क्योंकि उसने उस एतमाद की चीजें ली हुई हैं। So that's why the authorities give him the keys. इसी वजह से वहाँ के इख्तियार वाले लोगों ने उसको चाबियां थमा दी। Why? क्यों? Because क्योंकि they found trust in them. क्योंकि उन्हें वो एतमाद उस शख्स पर हासिल हो चुका है, And the binding and losing in earth और and जमीन heaven. पर बांधना और खोलना, आसमान पर बांधना और खोलना। Jesus find trust in Peter. और यीशु मसीह चूंकि अपना एतमाद रखते हैं पतरस पर, And Jesus find trust in Peter. और यीशु मसीह को एतमाद है पतरस पर, And when they find a trust, और जब उन्होंने वो एतमाद ढूंढ लिया पतरस के अंदर, yes, what do you want? What? Okay. So when, sorry, listen. Take everything you have. Come, take whatever you have here. Now listen. सुनिएगा, I'm talking about the trust. और मैं एतमाद के बारे में बात कर रहा हूँ। Sorry for interruption. Now listen. सुनिएगा, Now Jesus find a trust in Peter. और यीशु मसीह अब उस एतमाद को पा चुके हैं पतरस के And अंदर, now he is giving him a key और अब वो उसे देने को है चाबी, to bind, के बांधे to loose. और खोले। So this is the key. और यह है वो चाबी
which is given unto Peter. और जो कि पतरस को दी जाने वाली है। Why? क्यों? Because of the trust. सिर्फ उस एतमाद की वजह से। Because he find Jesus और क्योंकि उसने यीशु मसीह को पा लिया in the form of revelation. और एक मकाशफे की सूरत में। He says, you are the Messiah, the Son of God. और वो कहता है कि तू है मसीह जो कि खुदा का बेटा है। Now listen, my dear. और अब मेरे प्यारों सुनो। Why he is saying this? और क्यों उसने ये अल्फाज कहे? Because Peter revealed Jesus. क्योंकि वो जान चुका था यीशु मसीह को। The day you receive the revelation of Jesus और Christ, जिस दिन आप यीशु मसीह का मुकाशफा ले चुकते हैं, when you receive the revelation of Jesus Christ in your life, और जिस दिन आप अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह का मुकाशफा ले चुकते that हैं, who Jesus is unto you, और कौन है यीशु मसीह आपके लिए, and who is Jesus unto your family, और आपके खानदान के लिए यीशु मसीह क्या है, then he gives you a key. और फिर वो आपको कुंजी देता है, That because he trusts in you, क्योंकि वो आप पर एतमाद रखता है। the day the heaven trusts you, और वो दिन जिस दिन आसमान आप पर एतमाद करेगा, he gives you a key. और वो आपको देगा एक चाबी। So there are a lot of keys. और बहुत सी चाबियां हैं, One of these is a revelation. और उनमें से एक है मुकाशफा। And next keys we are learning. और जो अगली कुंजी हम सीखने वाले हैं, Hallelujah. हालेलुया। Those who are watching me live, are you listening me? और जितने लोग भी मुझे बराह रास्त देख रहे हैं, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? And the key represents responsibility. और एक चाबी जाहिर करती है जिम्मेदारी को। If you are a responsible person, और अगर आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, you will have key. तो आपके पास चाबी होगी। I know in my days of study, और मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़ाई के दिनों में, I was in the school और मैं स्कूल में था, and I was the head captain. और मैं उस क्लास का हेड कैप्टन था, And my class teacher, और मेरी जो क्लास टीचर थी, and she gave me the keys of the cupboard. और उस कमरा जमात की जो कबर्ड है उसकी चाबियां, Everything in that cupboard और उस कबर्ड में जितनी भी चीजें थी, was related to the class. और उस अलमारी में जितनी भी चीजें थी वो उस क्लास से ताल्लुक रखती थी। And I was the student of that class. और मैं भी उस जमात का एक तालिब इल्म था। So the cupboard represents the stuff of the class. और जो एक अलमारी क्लास की अलमारी है वो जाहिर करती है कि तमाम जरूरी इशिया उस क्लास की उसमें मौजूद है। So my teacher gave me the key. और मेरी उस जो उस्तानी है उसने मुझे चाबियां दी। Why? क्यों? She find trust in me. क्योंकि उसने उस एतमाद को मुझ में देखा और उसको हासिल किया। And she gave unto me. और इसी वजह से उसने वो चाबियां मुझे दी। So that I can protect the things of the class. और क्लासरूम की जितनी भी अहम चीजें हैं ताकि मैं उनकी हिफाजत कर सकूं। Which called a responsibility. और जिसको कहा जा सकेगा कि जिम्मेदारी। When the kingdom of God come to the earth. और जब खुदा की बादशाही जमीन पर आती है, and he choose you, और जब वो आपको चुनता है, he never give you just an authority, और वो सिर्फ आपको इख्तियार नहीं he देता, never give you just name Jesus, और वो सिर्फ आपको नाम यीशु नहीं देता, he also gives you the responsibility in the form of key. और चाबी की सूरत में आपको वो जिम्मेदारी देता है। I declare tonight, और आज की रात मैं बोलता हूँ, let God give you your key, और आज की रात खुदा आपको आपकी चाबी दे, in the mighty name of और Jesus. यीशु मसीह के नाम से। The person who carries the key, और वो शख्स जिसके पास उस चाबी की जिम्मेदारी है, he carries a role, और वो एक रोल उठाए हुए है, किरदार उठाए हुए he हैं, carry a role. वो एक किरदार उठाए हुए हैं। So I saw many times बहुत दफा when someone approached to the school earlier, और कोई भी शख्स अगर स्कूल जल्दी पहुंच जाता है, and the door is locked, और फिर उस स्कूल का जो बाहरी दरवाजा है वो बंद even होता the है, principal, हत्ता के प्रिंसिपल भी, he can't enter और वो भी दाखिल नहीं हो सकता चाबी के बगैर, until the person will come. और उस वक्त तक जब के वो शख्स जिसके पास चाबियां हैं, Until the person come who carries the key, and he will unlock the lock. और उस वक्त तक जब तक कि जिस शख्स के पास चाबियां वो आए और उस ताले को ना खोले। No matter you are the owner of the car, और इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आप एक कार के मालिक हो, and you sign the documents of और the car. आपने उस कार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर दस्तखत किए हो, The time you receive the keys, और वो वक्त जब आपके पास चाबी आ गई, the time you receive the keys, और वो वक्त जब आपने उस चाबी को मसूल किया, that is the time. और वो वक्त है, Now you have the access to enter. और अब वो वक्त है जब आप दाखिल हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So now Jesus gave the keys to Peter. और अब यीशु मसीह देने जा रहे हैं वो कुंजियां पतरस को। So what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? So let me explain
in another way. और मैं Importance of आपको- the kingdom. और बादशाही की क्या अहमियत है मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना And चाहूंगा, also the importance of the keys in the kingdom. और खुदा की बादशाही में जो अहमियत है कुंजियों की उसके बारे में। Every door of nation, और हर एक कौम का दरवाजा, every country have a door. और हर एक मुल्क एक दरवाजा रखता है, Every country have a door, और हर एक मुल्क एक दरवाजा रखता है, which we call an airport. और जिसको हम कह सकते हैं एयरपोर्ट, That is a door. और वो है वो दरवाजा। To enter into the city or a country, और दाखिल होने का किसी भी मुल्क में या किसी भी शहर में, there is a gate. और वहां पर एक गेट है, That gate carry a security person और उस गेट के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी का बंदा होता है who will check you. जो कि आपकी सिक्योरिटी को चेक करता है, And there is a certain kind of documents. और कुछ खास किस्म के दस्तावेज हैं, When they will see, और जब वो देखते हैं then they will allow you to enter, और फिर वो आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप दाखिल हो सकते हो, which we call the passport. जिसको हम कह सकते हैं कि पासपोर्ट, Let's say pass और कहिएगा पास and port. और पोर्ट, There is a word passport. और फिर वो लफ्ज बनेगा पासपोर्ट। So passport simple means, और पासपोर्ट का सादा मतलब, passport is a thing और पासपोर्ट वो चीज है which allows you to pass. कि जो आपको इजाजत देती है गुजरने की। Now listen, सुनिएगा, you will pass और आप गुजर सकते हैं through that card which we call the passport. और उस कार्ड के जरिए जिसको हम कहते हैं पासपोर्ट, You will go और आप जा सकते हैं through that passport. उस पासपोर्ट के जरिए You से, will enter और आप दाखिल हो सकते हैं through that gate और उस गेट के जरिए with से, the passport. उस पासपोर्ट के जरिए से। But they need a confirmation which we call a visa. लेकिन उनको एक खास किस्म की कंफर्मेशन चाहिए, इजाजतनामा चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं वीजा। Now the Jesus says something. और अब यीशु ने कुछ कहा, Jesus says, और यीशु ने कहा, before you enter into the kingdom of God, और इससे पहले कि तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो, you need to born again. और आपको जरूरत है नए सिरे से पैदा होने Then की, you will enter. तो फिर आप दाखिल हो सकते हो। So this is for entry is for everybody who believe in Jesus. और ये जो दाखला है वो हर उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। So believing in Jesus, और यीशु मसीह पर ईमान रखना, this thing will qualify you to enter into the kingdom of तो ये God. चीज आपको उस नुक्ते तक ले जाती है जहां पर आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो But सके। then you need a keys. लेकिन फिर आपको जरूरत है उस कुंजी की, You need a key, और आपको जरूरत है उस which चाबी we call की, responsibility. और जिसे हम कहेंगे जिम्मेदारी। Why you come into the kingdom? क्यों आप आए इस बादशाही में, Into the kingdom of Jesus. और यीशु मसीह की बादशाही Why में you came here? क्यों आप यहाँ पर आए? If you came, और अगर आप आए हैं there is a तो responsibility. फिर आपकी जिम्मेदारी है, There is certain और responsibility. खास किस्म की जिम्मेदारी है, He want to give you the keys. और वो चाहता है कि वो आपको वो चाबी दे। If you are in the earth, और अगर आप जमीन पर हैं you are called to be receive a key. और आप बुलाए गए हैं उस चाबी को हासिल करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. सुनिएगा, Now every building, और हर एक इमारत, if you go to the malls, और अगर आप मॉल में जाएं, every building have an exit door, or you can say the emergency exit. और हर एक मॉल का कोई ना कोई किसी तरफ दरवाजा है जिसे आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में जो दरवाजा इस्तेमाल होता है। How many people see this? कितने लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी डोर देखा है? There is a red signal और there. वहां पर लाल रंग का सिग्नल बनाया गया होता There is है, a signal where the man is running. और एक लाल कलर का सिग्नल होता है जिस पर कोई शख्स भागता हुआ दिखाया जाता है, And there's written the emergency और exit. उसके ऊपर एक बड़ा अल्फाज में लिखा होता है कि ये इमरजेंसी की जगह है, यहाँ से भागने के लिए, If you जगह छोड़ने study के लिए। emergency exit, और अगर आपने पढ़ाई की है इमरजेंसी एग्जिट के बारे में, so this is the only door in the mall. और उस मॉल में सिर्फ वाहिद वही रास्ता है, There's the only door. और सिर्फ एक वाहिद रास्ता Do not have the key जिसकी कोई चाबी नहीं होती from outside. बाहर की तरफ से, But the person who is inside, लेकिन जो शख्स अंदर है he can open it वो उसको खोल सकता for है, the emergency exit. और आपके इमरजेंसी बाहर जाने के रास्ते के लिए। See, this is called the universal key. और ये आप कह सकते हैं कि कायनात की कुंजी है, The universal means a very special key. और जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत खास किस्म की कुंजी। So if the person have that key, और अगर कोई शख्स वो चाबी रखता है, he can open the door of exit which we call emergency.
और वो फिर एग्जिट वाला दरवाजा भी खोल सकता है, जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी। Not from outside, बाहर की तरफ से नहीं, from inside. अंदर की तरफ से। See, there are special doors. और देखें कि खास किस्म के दरवाजे हैं। That's why Jesus said, इसी वजह से यीशु ने कहा, in the times of emergency, Nana Mashiach Katarabayaha. Revelation 3:20 says, He is knocking at the door. और इमरजेंसी के हालात में वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। He is knocking at the door of your heart. और आपके दिल के दरवाजे पे वो खटखटा So रहा है। this is the door of emergency. और ये है वो इमरजेंसी का दरवाजा। Nobody can open this door from outside. और कोई भी शख्स इस दरवाजे को बाहर की तरफ से नहीं खोल That's सकता। why the scripture says, इसी वजह से कलाम मुकद्दस कहता है, Whosoever shall open. और जो कोई खोलेगा। So this door is not to be opened from outside. ये जो दरवाजा है ये बाहर की तरफ से नहीं खुल सकता। This door need to be opened from inside. और इस दरवाजे को जरूरत है कि वो अंदर की तरफ से खोला जाए। So to receiving Jesus, और यीशु मसीह को मौसूल करना, see, it is not from outside. ये बाहर की तरफ से नहीं है, It is from inside. और ये है आपके अंदर की The तरफ day से। you believe in your heart, और जिस दिन आपने अपने दिल से उस पर यकीन किया, the day you receive Jesus और in your जिस heart, दिन आपने अपने दिल से यीशु मसीह को मौसूल किया, and then you open your heart for Jesus. और फिर आपने अपना दिल यीशु के लिए खोल दिया, So this is the thing He will enter और फिर ये वो चीज है कि वो दाखिल होगा from the door of your heart. और आपके दिल के दरवाजे के जरिया से, Then He will give you another key और फिर वो आपको एक और चाबी देगा to open the kingdom realms. कि आप उस बादशाही के आलम को खोल सकें। So there are two doors. और वहाँ पर दो दरवाजे हैं, There is a door to enter और वो दरवाजा है अंदर दाखिल होने का, and there is a door to exit. और दरवाजा है बाहर जाने का। So as I mentioned before, और इससे पहले मैं जैसे बता चुका हूँ, in the times of emergency, और इमरजेंसी के वक्त में there are certain doors placed in the buildings. और मुख्तलिफ इमारतों में खास किस्म के दरवाजे बनाए गए हैं। Those who are in sin, और जो कोई भी गुनाह की हालत में है, they are in the emergency. और आप समझ लें कि वो इस वक्त हादसाती मोड़ पर है, The fire is there. और वहाँ पर आग है, The threat is there. और वहाँ पर धमकाया जाना है, The problems are और वहाँ there. पर मसाइल हैं, They need an exit door. और उन्हें एक बाहरी रास्ते की जरूरत है, They need rescue. और उनको जरूरत है कि उनको बाहिफाजत उनकी जान बचाई जाए। Jesus is the only way to rescue people. और यीशु मसीह वो वाहिद जरिया है जो जिसके जरिए बचाया जा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ है? So when He enters into your और life, जब वो आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, He will give you वो आपको देता है another key. एक और चाबी। What is that key? और वो चाबी क्या है? That key will give you another access और वो चाबी आपको देगी एक और रास्ता, to operate in the kingdom of God. जो कि आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं खुदा की बादशाही में। So let's read Revelation chapter 1 verse 18. और हम मुकाशवा उसका पहला बाप उसके 18 आयत देखेंगे। Let's see what the Bible says. देखिए कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस क्या कहता I है। am the living one. I was dead. And behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Revelation 1 verse 18. और मुकाशवा उसका पहला बाप उसकी 18 आयत कुछ यूं मरकूम है। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। So there is certain kind of keys Jesus carry. और कुछ खास किस्म की चाबियां कुंजियां हैं जो यीशु मसीह रखते हैं। So Peter carry a key of binding and loosing. और जो पतरस है उसके पास खोलने की और बंद करने की कुंजियां मौजूद हैं। Now, but Jesus do not have the binding and loosing key. लेकिन यीशु मसीह उन खोलने और बंद करने वाली चाबियों को नहीं No, रखते। no, no, no. He is the owner of the kingdom. क्योंकि वो बादशाही का मालिक है। But he is a owner. क्योंकि वो बादशाही का मालिक है। Now he have another keys. और अब उसके पास कुछ और चाबियां हैं। The keys of death and Hades. और जिसको कहेंगे हम कि जिंदगी और मौत और अलमे रवा की चाबियां। Look at the Revelation. और हम देखेंगे मुकाशवा में What is written in it? और क्या लिखा है इस बारे में। Read it. और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, I am the living one. और मैं जिंदा हूँ, I was dead and behold I alive forever. और मैं मर गया था, और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, And I hold the keys of death and Hades. और मौत और अलमे रवा की कुंजियां मेरे पास So हैं। now there is a key of death और मौत की है चाबियां and the Hades.
और आलमेरवा की। So what Hades? और आलमेरवा क्या है? So Hades is a place down to the earth. और आलमेरवा वो जगह है जिसे आप कह सकते हैं जमीन के नीचे की So, जगह। so listen carefully, और child. बहुत एहतियात से सुनिएगा। When people die, और जब लोग मरते हैं they directly go to the place. और वो सीधा उस जगह में चले जाते हैं। I'm not talking about the place now और अब मैं उस जगह के बारे में अभी बात नहीं कर रहा। because there is a lot of things to say. और बहुत सी चीजें हैं इसके बारे में बयान की जाने Let me वाली। say this way. और मुझे इस तरीके से समझाने दें। The Bible mentioned Jesus went to Hades. और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि यीशु मसीह आलमेरवा में उतरे। Why he went to Hades? और वो क्यों गए आलमेरवा में? To pick the keys of death. और मौत की कुंजियां लेने के लिए। Those who die after Adam, और कितने हैं जो मर चुके हैं आदम के बाद? before Jesus, यीशु मसीह से पहले। they all are under death and under Hades. और वो सब है मौत के नीचे और आलमेरवा में। So Jesus went to that place और यीशु मसीह आलमेरवा में गए and he picked the key. और उन्होंने वो कुंजियां उठा ली। There is no death for my people और now. अब मेरे लोगों के लिए कोई मौत नहीं। That's why Jesus said, I am the way, truth and life. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। Those who believe in me और जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा shall not die, वो मरेगा नहीं but have eternal life. और उसके पास हमेशा की जिंदगी Why होगी। he have life? और क्यों उसके पास जिंदगी होगी? He carries the key of death. क्योंकि उसने मौत की कुंजियां उठा रखी So there है। is no death for those who believe in और Jesus. उनके लिए मौत नहीं है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there is a key Jesus carries. और वो चाबियां हैं जो यीशु मसीह उठाए हुए हैं। Before Jesus died, और यीशु मसीह मरने से पहले he said, I am the light of the world. और उन्होंने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मरते he said, I am the way, truth and life. और उन्होंने कहा मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। Let's say what happened when Jesus died and resurrected. और देखते हैं कि क्या हुआ जब यीशु मसीह मर गए और जिंदा उठाए गए। Then what he said और फिर उन्होंने क्या कहा? after resurrection. और अपने जी उठने के बाद Revelation 22:12 और हम देखेंगे मुकाशवा उसका 22 बाब and verse 12. और उसकी 12 आयत। Let's see what Jesus said. और देखते हैं कि यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Revelation और मुकाशवा 22. उसका आखिरी बाब, Revelation 22. मुकाशवा उसका आखिरी बाब और उसकी 12 आयत। Revelation 22 verse 12. मुकाशवा 22 बाब उसकी 12वीं आयत. 12वीं आयत। 12. And behold, I come quickly, देख मैं जल्द आने वाला हूँ and my reward और हर एक के काम के मुआफिक is with me to give every man according as his work shall be. और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए जब मेरे पास है। I am the Alpha and Omega, हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा and the beginning and the end, और अव्वल और आखिर, and the first and the last. अव्वल और आखिर, इब्तिदा और Now इंतहा। he changed the statement. और अब उन्होंने अपने बयान को बदल दिया He said something to the next level. और उन्होंने किसी अगले लेवल के बारे में कुछ कहा। He said, I am the Alpha and Omega, और उन्होंने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ the beginning and the end. और इब्तिदा और इंतहा हूँ। So before Jesus, इससे पहले कि he यीशु never said, I am the beginning and the end. और उन्होंने मरने से पहले नहीं कहा कि मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। Because before Jesus, क्योंकि यीशु मसीह से पहले when the people die, लोग मरते the end is into the Hades. और वो चले जाते आलमे अरवा में। But after Jesus, लेकिन यीशु के he बाद took the keys of Hades और यीशु मसीह ने आलमे अरवा की कुंजियां उठा ली and the keys of death. और मौत की कुंजियां। Now he is saying, I am the Alpha and Omega, और the beginning and the ending. इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा हूँ। Why he said it? क्यों उन्होंने कहा? Now, अब those who will die in Christ, और जो कोई मसीह में मरेगा their end will be Jesus. और उसका इख्तिताम यीशु होगा। They will meet Jesus. वो यीशु से मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। How many people are learning it? कितने लोग हैं जो आज यहाँ सीख रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Now listen. सुनिएगा, Now listen. सुनिएगा। Marriage has a key. और शादी की भी एक कुंजी है। If you want a successful marriage, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतरीन चाहते हैं so there must be a key. और फिर एक चाबी है उसकी। Let me say this way. और मैं इसको इस तरह से बयान करूंगा। A husband is rich and having a lot of cars. और एक जो शोहर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा कार रखता है। And but his wife, लेकिन उसकी बीवी she is not able to drive वो इस काबिल नहीं कि वो उसको चला सके because of fear.
इस वजह से She need a key of revelation. क्योंकि उसको मुकाशफे की चाबी की जरूरत है। So there are certain kind of marriages और कुछ खास किस्म की शादी की जिंदगियां हैं where जहां पर husband is not connected to wife and wife is not connected to husband. कि जो शोहर है वो बीवी के साथ मुत्तफिक नहीं और बीवी शोहर के साथ मुत्तफिक नहीं। There are certain gaps. और कुछ उनमें खास किस्म के फासले हैं। They need a key of marriage. और उनको जरूरत है आज शादी की चाबी की। When to receive the key of marriage? और जब उनको वो चाबी मिल गई Your marriage will be तो successful. आपकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब होगी। And there is a key of business. और एक खास किस्म की चाबी है कारोबार के लिए। Many people try to do business और बहुत से लोग हैं जो कोशिश करते हैं कारोबार करने and की they scatter. और वो उनके साथ वो नहीं उसको कामयाब कर पाते, They scatter बर्बाद वो हो गए. बर्बाद हो जाते हैं They become into debit. और वो कर्ज के नीचे आ जाते हैं। This is not they are foolish. और ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है या उनको अक्ल नहीं। It is a good step. और ये एक अच्छा कदम है। Without key, और चाबी के there बगैर is no business. कोई कारोबार नहीं। You will see और आप देखेंगे that in the world level, और दुनिया में the businessmen who are running the greater business, और वो तमाम कारोबारी शख्स जो एक आला किस्म का कारोबार कामयाब कारोबार चला रहे हैं they send their children to get study. और वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो इसकी तालीम लें, But at the end, लेकिन आखिर में they also teach them you are a son of the businessman. लेकिन उसके आखिर में वो उनको समझाते हैं कि तुम एक कारोबारी शख्स के बेटे हो You will study. और तुम पढ़ोगे, And that is not your part. लेकिन ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है। Your part is the same business what I am doing, you will be run there. और तुम भी वही करोगे जो मैं कारोबार कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। That's the key. और ये है एक चाबी। That's the key. और ये है एक चाबी। So there are certain keys और खास किस्म की चाबियां हैं to do the business. कारोबार को करने के लिए। Same like this. बिल्कुल इसकी तरह There is also a key of relationships. और कुछ खास किस्म की चाबियां हैं रिश्ते की। So you have many relation in your life. और जिंदगी में हम बहुत ज्यादा रिश्तों को देखते हैं, ताल्लुक को देखते हैं। When you see relations, और जब आप उन ताल्लुक को देखते हैं there is a certain key और खास किस्म की चाबियां हैं to maintain relationships. और उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ खास किस्म की चाबियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। So why I am mentioning the importance of keys? और क्यों मैंने यहाँ पर चाबियों की अहमियत को बहुत बार दोहराया? Why? क्यों? Because I know there must be an important thing. और क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। Because Jesus speak about this. और क्योंकि यीशु मसीह ने इसके बारे में बात की है। Anything Jesus speak about और बहुत सी चीजें जिनके बारे में यीशु ने बात की must carry an importance. और वो रखती है अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत। So if Jesus is speaking something, और अगर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं carry a thing in it. और कोई ना कोई उसमें कोई राज या बात छुपी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सुनिएगा, As I said, जैसे मैंने कहा, if you want a successful marriage, और अगर आप एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं so there is a couple. और कोई भी एक जोड़ा है, If they want a successful marriage, और अगर वो चाहते हैं एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी and if they don't have the right key to move on in marriage, और शादी में आगे बढ़ने के लिए वो सही चाबी नहीं रखते, their marriage will be ended on divorce. और उनकी शादी का इख्तिताम तलाक पर हो जाएगा। And the starting of divorce और उस तलाक की शुरुआत will be starting on disagreements. और जो उसकी इब्तिदा है वो होगी डिसएग्रीमेंट से। Yes. So disagreement means और डिसएग्रीमेंट का मतलब है two people are not agree on one thing. कि दो शख्स किसी एक बात पर मुत्तफिक ना हो। So you need to understand the key of marriage. और आपको जरूरत है आज शादीशुदा जिंदगी की कुंजी को समझने की। Before you do anything in your marriage, और अपनी जिंदगी में अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए you need an agreement. और आपको जरूरत है एक एग्रीमेंट की। So when your things are moving in agreement, और जब आपकी चीजें एग्रीमेंट की तरफ चलती हैं, you are not catching. I just give one key. और मैंने एक चाबी आपको पहले ही दे दी, I लेकिन लोग just नहीं speak the key इसको, of marriage. और मैंने शादी की वो चाबी आपको दे दी, An agreement. और वो है एग्रीमेंट, Which the Peter says the submission. और जिसको हम कहेंगे ताबेदारी। The Peter is mentioning this key in the name of submission. और पतरस इस चाबी को ताबेदारी से Husband submit to your wife and wife submit to your husband like this. और बिल्कुल एक शोहर अपनी बीवी का ताबेदार हो और बीवी अपने शोहर की ताबेदार। So
So in this term, और इस टर्म में I made one key. और मैंने एक चाबी दी, If they are agree with each other, they submitted their things. और Hallelujah. अगर वो दोनों मुत्तफिक है किसी एक बात पे, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ताबेदार हैं। So those who are children, और वो जो बच्चे हैं, tell your parents, अपने माँ बाप से कहिएगा change their lifestyles, और अपनी जिंदगियों के जीने का तरीका तब्दील करें, be an agreement parents. और एग्रीमेंट करने वाले माँ बाप बने, Agree on one thing. और किसी चीज पर मुत्तफिक हों। God never created you separately. खुदा ने आपको अलग अलग नहीं बनाया, He make you one. और उसने आपको एक ही बनाया है। Marriage make one to two people. और जो शादी है वो दो अफराद को एक बनाती है, Marriage is the only dimension और सिर्फ एक डायमेंशन है, वो है शादी, where two people become one. और जिसमें दो शख्स एक बनते हैं। And the God never count them two. और खुदा उनको दो नहीं गिनता, God count them one, और खुदा उन्हें गिनता है एक, which we call one flesh. और जिसे हम कह सकते हैं एक जिस्म। how two person having two bodies and God is seeing them one flesh. और कैसे हो सकता है कि दो लोग दो जिस्म रखते हैं और खुदा उनको एक जिस्म गिने? So this is God. और ये है खुदा का We see तरीकाकार, them in one. और जो कि देख रहा है उनको दो अफराद को एक में। Hallelujah. हालेलुया। So this is a very much important thing. और ये बहुत अहम चीजें हैं। What is that important thing? और ये क्या है अहम चीजें? This is the key. और ये है वो So चाबियां। there is a lot of things, और बहुत सी चीजें हैं, and also the keys of ministry. और मिनिस्ट्री को चलाने की भी कुछ बहुत अहम There are keys कुंजियां हैं, और कुंजियां हैं to run the ministry. कि मिनिस्ट्री को चलाया जाए, There is a key to preach. और तबलीग करने भी कुछ कुंजियां हैं, A lot of keys. बहुत सी कुंजियां। But the second key I'm gonna start now. और दूसरी कुंजी उसकी है जिसे मैं अब शुरू करने वाला हूँ। So now today I'm teaching you the second key, that is the anointing. और दूसरी जो की है उसे हम कह सकते हैं मसा। So in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में, whenever God appoint a king, और जब भी किसी भी बादशाह को खुदा अपॉइंट करता है, he used the anointing. और वो इस्तेमाल करता है अपने मसा को, He used anointing he used oil to anoint a king to be a king. और वो बादशाह को बादशाह बनने के लिए अपने मसा को इस्तेमाल करता है, जो तेल के जरिए किया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। The most misunderstood term in the Bible is an anointing. और जितनी जो अभी तक बाइबल की टर्म्स में ना समझे जाने वाली चीज है, वो है मसा। Many people they misuse these things. और बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। First key I teach you, और पहली चाबी जो मैंने आपको समझाई, it was the revelation. और वो थी मुकाशफा। So revelation is the key. और मुकाशफा वो चाबी है। And the second key I am teaching you is an anointing. और दूसरी चाबी जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ वो है मसा। Hallelujah. हालेलुया। In the book of John, और chapter 10, verse 7 to 10. Let's read. यूहन्ना उसका 7 बाब, John chapter 10, यूहन्ना उसका 10 बाब verse number 7. और उसकी 7 आयत। Let's read John 10. यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। John chapter 10, verse number 7. यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 7 आयत। Then Jesus said to them, बस यीशु ने उनसे कहा, again, most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। I am the door, दरवाजा मैं हूँ। as I said before. और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, I teach you about the door. और मैंने आपको दरवाजे से मुतालिक समझाया। Now listen. सुनिएगा। I am the door. If anyone enter by me, और मैं दरवाजा हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो। he's not saying through me. और उसने ये नहीं कहा कि मेरे जरिया से, He said by me. और उसने कहा है मुझसे। So it's mean he will confirm someone. और इसका मतलब है वो किसी के बारे में बात कर रहा है। He says, I don't know someone is catching. Let me repeat. I am the door. मैं दरवाजा हूँ, I am the door. और मैं दरवाजा If हूँ, anyone enters और अगर कोई मुझसे by me, मुझसे
he will be saved दाखिल हो तो वो निजात पाएगा and will go in and out and find pasture. और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Now listen, सुनिएगा, Jesus is a door, और यीशु मसीह है but दरवाजा, there is a certain keys to enter and coming in and going out लेकिन कुछ खास किस्म की कुंजियां हैं बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए, to receive a pasture. और चारे को हासिल करने के लिए। So you need to be feed well. और आपको जरूरत है कि आपको अच्छा खिलाया जाए, So you need this revelation. तो आपको आज इस मुकाशफे की जरूरत है। Let's go there. और हम चलते हैं उस तरफ। 10th verse is a deep one. और 10वीं आयत बहुत अहम है, Now listen. बहुत गहरी The है। thief does not come except to steal and to kill and to destroy. चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। I have come that they might have life and that may have it more abundant. I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep. Hallelujah. Oh, shatarabos. चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। In this whole scripture, और इस तमाम हवाले में you will see Jesus will say the thief will come from another window. और आप कहेंगे कि चोर किसी और खिड़की से आ सकता है। Now Jesus is saying in this whole story, you will see, read the whole chapter, और आप इस पूरे बाप को पढ़ सकते हैं then you will find something. और आप कुछ उसमें चीजें जान लेंगे। Thief will come through another window. और चोर आ सकता है किसी और खिड़की से। So why I choose this scripture? और क्यों मैंने इस हवाले को चुना? To share something with you. और आपसे कोई बहुत खास चीज बांटने के लिए। If your assignment is big, और अगर आज आपकी असाइनमेंट बड़ी है, if your responsibility is big or small, और अगर ये माने नहीं रखता आपकी जिम्मेदारी बड़ी है या छोटी है, you need an anointing. तो आपको आज मसा की जरूरत है। What is anointing? और मसा क्या है? Anointing is a divine ability. और जो मसा है, मसा है वो इलाही सलाहियत है। So this is not a normal ability of the person. और किसी शख्स की आम सी काबिलियत नहीं बल्कि इलाही काबिलियत है। So if the person carry a divine anointing, और अगर कोई शख्स इलाही काबिलियत रखता है, divine strength, और ताकत रखता है इलाही, that strength is not from anybody. और वो जो ताकत है वो किसी की तरफ से नहीं है। So he received from divine और source. उसने इलाही तरीकाकार से लिया। The source is God. और उसका जो जरिया है वो खुदा है। Any divine ability, और जो भी कोई इलाही काबिलियत है, it is called an anointing. और उसे हम कहेंगे मसा। So if the divine God called you to do certain things, और अगर आपके इलाही खुदा ने आपको कुछ करने के लिए बुलाहट दी है, he will give you an anointing. तो फिर वो आपको मसा भी देगा। If you believe Jesus, और अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, you will see Jesus was also anointed. और आप ये जानते होंगे यीशु मसीह खुद मसाशुदा है। Let's see where it is written. और कहाँ लिखा है ये? The book of Acts, और इमाल में लिखा है, chapter 10, उसका 10 बाब, chapter 10, उसका 10 बाब verse 38. और उसकी 38 आयत। Read John 10:38. और हम अमाल उसका 10 बाब उसकी 38 आयत पढ़ेंगे। Our Jesus was also anointed. और हमारा यीशु मसीह भी मसाशुदा है। Jesus was also anointed. और यीशु मसीह भी मसाशुदा है। Hallelujah. हालेलुया। Marama shekere busakira bahana. Marondere benekele. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदूस और कुदरत से किस तरह मसा किया। Hey, listen. And the God, how God anointed Jesus of Nazareth. और कैसे खुदा ने यीशु मसीह को मसा किया। See, Jesus is also anointed. और यीशु मसीह भी मसाशुदा है। You see, David was anointed. और आपने देखा होगा कि दाऊद भी मसाशुदा है। Kings were anointed और जितने भी बादशाह हैं वो भी मसाशुदा हैं। to perform the ability of God. और खुदा की काबिलियत को करने के लिए। So if you are doing the work of God, और अगर आज आप खुदा का काम कर रहे हैं, you need the anointing of God. और आपको खुदा के मसा की जरूरत So है। anointing is a key और जो मसा है वो चाबी है in the kingdom of God. खुदा की बादशाही में। I am not saying the people are not anointed. और मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मसाशुदा नहीं I हैं। am saying और मैं कह रहा हूँ every person हर एक शख्स who want to do the work of God, और जो चाहता है कि वो खुदा का काम करे, or God called him to do the work, और खुदा ने उसे बुलाया है कि वो उसका काम करे, he will give them the anointing. और वो उसको वो मसा देगा। As I said, जैसा कि मैंने कहा, we are the core laborer of the kingdom. और हम खुदा के
हम खुदा की बादशाही के साथ मजदूर हैं. और हम खुदा की बादशाही के साथ मजदूर We are हैं co-laborer. और हम खुदा की बादशाही के साथ मजदूर हैं. What does it mean? और इसका मतलब क्या होगा? That's why Jesus said, इसी वजह से यीशु ने कहा the harvest is much, कि फसल तो बहुत है but the laborers are few. लेकिन मजदूर थोड़े हैं. So the called are many, और बुलाए हुए तो बहुत the हैं chosen are few. लेकिन चुने हुए कम हैं. So what does word chosen mean? तो क्या मतलब हुआ चुने हुओं का? So all people are called by God. और खुदा की तरफ से तमाम बुलाए हुए हैं. But when God choose somebody, लेकिन जब यीशु मसीह किसी को चुन लेते हैं when God choose और somebody, जब खुदा किसी को चुन लेता He है give him anointing और वो उसको मसा करता है to separate that man. और वो दूसरों से उसको अलग कर लेता So है. that separation mean an anointing और of God is उसका upon that मतलब है person. कि खुदा ने उसको अलग किया वो मसा देने के लिए. That's why the people are healing people. और इसी वजह से वो लोग हैं जो कि शिफा देने वाले लोग So हैं. pastor is a man और जो पास्टर है वो एक शख्स है like you. बिल्कुल आपकी तरह. Why he lay hand on you and you receive your healing? और फिर ये क्यों है कि वो किसी पे हाथ रखता है और वो शिफा पा जाता है? Yes, he believed the same Jesus और वो भी उसी यीशु को मानता है that you are believing. जिसको आप मानते हो. But God chose him to heal you. और लेकिन खुदा ने उस आदम को चुना है कि वो चुना जाए और वो उसको शिफा बख्शे. What is that choosing? और वो क्या है चुना होना? It is an anointing. और ये है वो मसा. So what I am saying, क्या मैं कह रहा हूँ? in the kingdom of और God, खुदा की बादशाही में the anointing is a key. और जो मसा है वो एक चाबी The है anointing is a key. और मसा एक चाबी है. So anointing enable a man to perform the divine abilities. और मसा किसी भी शख्स को इस काबिल बनाता है कि वो इलाही कामों को कर सके. So any person और कोई भी शख्स who is doing the work, but any person, let me say in a slow way. और मैं बहुत आहिस्तगी से समझाऊंगा. Any person, वो कोई भी शख्स if he is doing a work, और अगर वो काम कर रहा है that work और वो काम is not able to done by a man. और जो कि किसी इंसान के जरिए नहीं हो सकता. This is a sign. और ये निशान है Carrying an anointing. कि वो शख्स एक खास मसा रखता I है. know one of my friends. और मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ He was a very good doctor. और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है. One day, एक दिन now he's a preacher. और अब चूंकि वो एक प्रीचर बन चुका है I was talking to him. और मैं उससे बात कर रहा था. One day he was saying, और एक दिन उसने कहा any critical case और कोई भी बहुत पेचीदा केस in my hospital, मेरे हॉस्पिटल में अगर आता है when it comes to the hospital, और जब वो हॉस्पिटल में आता है the other doctor, they called me to do that operation. और उस ऑपरेशन को करने के लिए दूसरे डॉक्टर मुझे बुलाते हैं. And I say, why? मैंने कहा क्यों? He answered me, और उसने मुझे जवाब दिया because there is no operation I did and that operation went wrong. और कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं होता जो मैं करूं और वो कामयाब ना हो. He says this and he says, what is that? और फिर उसने कहा ये क्या है? He asked me a question और उसने मुझसे सवाल किया and I answered him. और मैंने उसे जवाब दिया. I said, मैंने कहा the doctors are also standing with you in the operation theater. और दूसरे डॉक्टर भी तुम्हारे साथ ऑपरेशन थिएटर में खड़े होते They हैं are also called to be a doctor. और वो बुलाए गए हैं डॉक्टर के लिए They are also doing the work of the doctor. और वो एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे But हैं. why they are not confident to do the work? और क्यों वो पूरे तमाद नहीं है उस ऑपरेशन को करने के They लिए? receive the knowledge of doctor and they practice doctor. और उन्होंने डॉक्टर बनने की तमाम डिग्रियां ली लेकिन और आज वो क्योंकि उसको अमली तौर पर दिखा रहे हैं. But you are not only a doctor. और लेकिन सिर्फ तुम एक डॉक्टर नहीं हो You also receive the anointing to be a doctor. और तुम्हारे पास वो मसा है कि तुम एक डॉक्टर बनो. Because the Luke in the Bible, क्योंकि लूका जो कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक he was a doctor. और tabib. वो एक तबीब था So he received the anointing. और उसे वो मसा मिल चुका था. So he sees Jesus as a doctor. और उसने यीशु मसीह को एक डॉक्टर के तौर पर देखा. Hallelujah. Hallelujah. In the kingdom of God, the anointing is a key. और खुदा की बादशाही वो चाबी है. So there is a key और वहाँ पर एक चाबी है in the kingdom. और बादशाही में. And the second key is an anointing. और दूसरी जो चाबी है उसे हम कहेंगे मसा. Hallelujah. हालेलुया. Are we together? क्या मेरे साथ है? Those who are watching me live, और जितने लोग मुझे बराह रास्त देख रहे हैं are you feeling blessed? और क्या आपको बाबरकत महसूस हो रहा है? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं?
That's why the Apostle Paul says something. इसी वजह से पौलुस ने कुछ कहा है। He says, उसने कहा, I can do anything in Christ. और मसीह में मैं हर कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। हूँ। Why he saying? क्यों उसने कहा? He says, I can do anything in Christ. और मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। Who strengthened me? और जिसने मुझे ताकत बख्शी है। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? How he knows? कैसे वो जानता है He can do anything. कि वो कुछ भी कर सकता है? Because the thing God wants him to do, और वो चीज जो खुदा चाहता है कि वो करे, God also give him an anointing. और खुदा ने उसको मसा भी दे रखा That's है। why he is confident. और इसी वजह से पूरे तमाद है। Aish. That's why he is more confident than others. और वो दूसरों से ज्यादा पूरे तमाद है। That's why he says we find confidence in Christ. और इसी वजह से वो कहता है कि हमने मसीह में पूरे तमाद है। Yeah, he says we find confidence in Christ. और हम यीशु मसीह में पूरे तमाद हैं। Why he is confident? क्यों है वो एतमाद से भरा हुआ? Anointing make him confident. इसी वजह से कि मसा ने उसको वो एतमाद बख्शा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise be the name of the Lord. Keep sharing this. और इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। Keep sharing this. और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। Keep sharing. Keep sharing. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। So that people can listen the word of God. और ताकि दूसरे लोग भी खुदा उनका कलाम सुन सके और उससे बरकत हासिल करें। And Lord will surely bless their lives. और खुदा उनकी जिंदगियों को बरकत बख्शे। So anointing is the strength of God. और खुदा की ताकत है मसा। Where your strength lose, और जहाँ पर आपकी ताकत कम पड़ जाती है, खत्म हो जाती है, from that point anointing start. तो फिर उस नुक्ते पर मसा शुरू होता है। Where your capacity of prayer removed, और जहाँ पर आपकी दुआ करने की ताकत खत्म हो जाती है, where your capacity leaves you, और जहाँ पर आपकी ताकत आपको छोड़ देती है, anointing of God came upon और you, खुदा का मसा आप पर आता है, and you start praying more. और आप ज्यादा दुआ करना शुरू करते हैं। So every Christian in Jesus, और यीशु मसीह में हर एक मसीही, he is anointed by Jesus. और वो यीशु मसीह से मसा शुदा So है। Christ means the anointed one. और जो मसीह का मतलब है मसा शुदा। And what does the word Christian mean? और फिर मसीह का मतलब क्या हुआ? Is the Christian mean the anointed one? और फिर मसीह का मतलब हुआ मसा I शुदा। declare in the kingdom of और God, खुदा की बादशाही में मैं बोलता हूँ, if you are called in the kingdom of और Jesus, अगर आप खुदा की बादशाही, यीशु की बादशाही में बुलाए गए हैं, tonight let God release the anointing of और God upon आज your ही life. आपकी जिंदगियों पर खुदा अपने मसा को भेजेगा। The anointing He called you to do. और वो मसा जिसके लिए आप बुलाए गए हो, If you call to heal sick, let receive your healings. और अगर आज आप बुलाए गए हो बीमारों को शिफा देने के लिए, तो आप शिफा देने के लिए बनो। Let God use you to heal people. और खुदा आपको इस्तेमाल करे लोगों को शिफा देने के If लिए। you are called to preach, let God release the और anointing अगर of आपको preaching. खुदा का कलाम सुनाने के लिए बुलाए गए हो, तो खुदा आपको इस काबिल बनाए कि आप कलाम सुना सको। Let God release the anointing of और preaching. आप पर खुदा अपने प्रीचिंग की रूह को भेजे, Let God release the anointing of preaching. और तबलीग करने के मसा को आपके ऊपर भेजे। If God called you to be a great businessman, let the business anointing come और upon your अगर life. आपको एक अच्छा कारोबारी शख्स होने के लिए बुलाया गया हो, तो खुदा उन कारोबार की मसा आप पर भेजे। If God called you to be a great messenger of God, let God release an anointing to be a messenger. और अगर आप खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए, तो खुदा आपको एक पैगाम पहुंचाने वाला बनाए और In the मसा mighty भेजे। name of Jesus. और यीशु के नाम से Are we together? क्या मेरे साथ है? There is a key of anointing. और मसा की है एक चाबी, The key of the anointing. और मसा की चाबी। There are a lot of keys in the kingdom, my dear. और मेरे प्यारों, बहुत सी चाबियां खुदा की बादशाही में। I started the second one. और मैंने चूंकि दूसरी शुरू की है, An anointing. और जिसको कहते हैं मसा। Hallelujah. हालेलुया। As I said, जैसे मैंने कहा, Maron de Barekatu. The fuel without car और जो तेल है कार के बगैर, is just a fuel. वो सिर्फ तेल है, You cannot use. आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। The same way, और उसी तरीके से, the car without fuel और जो कार है तेल के बगैर, is useless. और वो भी बेकार है। If you have brand new car और अगर आपके पास एक बिल्कुल नई कार है, without a fuel, लेकिन उसमें तेल नहीं, even you cannot go 1 feet. और हत्ता कि आप उसके जरिए एक कदम भी नहीं आगे जा सकते, There is no fuel. तो क्योंकि उसमें तेल नहीं है। If you are called by God, और अगर आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हो, fuel is like an anointing. तो फिर वो जो तेल है वो एक मसा की तरह है, By your strength, और आपकी अपनी ताकत के मुताबिक you will drag the car.
क्या आप कार को धक्का लगा सकते हो? Yes, to the certain point. और उस आपके मुतलुबा नुक्ते तक Just a 2 feet or 3 feet. सिर्फ 2-3 कदम आप कह सकते Or you हैं, can say 1 meter. और आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर तक आप धक्का लगा But you सकते हैं, cannot go to another destination लेकिन आप अपनी किसी और मंजिल पर नहीं पहुंच सकते with dragging the car. सिर्फ धक्का लगाने से। You need आपको जरूरत है anointing, मसा की, which we call a fuel. और जिसको हम कहते हैं वो When you तेल। put fuel in the car, और जब आप तेल डालेंगे कार के the अंदर car will start. तो फिर कार चलना शुरू हो जाएगी, You will easily sit down in the car और आप बहुत आसानी से उसमें बैठ सकेंगे, and you will go to your और destination. आप बहुत आसानी से अपनी मंजिल पा What does सकेंगे। it mean? इसका मतलब क्या हुआ? When the people do ministry and the work of God by their own strength, और जब लोग मिनिस्ट्री या खुदा का काम अपनी ताकत से करना चाहते there is हैं, always a struggle. और हमेशा वो उनको मेहनत करनी पड़ती है, They will do by their own power. और उनको करना पड़ता है उनकी अपनी जाती ताकत से। When they receive the anointing of God to do the work of God, और जब वो खुदा की तरफ से मसा को हासिल कर लेते हैं खुदा का काम करने के लिए, when they receive the word of God, और जब वो खुदा के कलाम को ले लेते हैं, and then they receive the anointing to do the ministry, और फिर उनको वो मसा मिलता है कि वो मिनिस्ट्री को चला सके, that anointing is like a fuel, run their ministry fluently. और जो वो तेल है वो मसा है, वो उस तेल की अहमियत रखता है, और फिर वो मसा पाने के बाद उनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल आसानी से चल सकती है क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। This is a co-laborer with kingdom. और इसको हम कहेंगे बादशाही बादशाही के साथ मजदूरी, So they are doing the work of the kingdom और वो काम कर रहे हैं बादशाही में मजदूर with की तरह anointing, और मसा के साथ, because they are working in the kingdom of God. क्योंकि वो काम कर रहे हैं खुदा की बादशाही में। Hallelujah. हालेलुया। So anointing is a second key. और चूंकि मसा दूसरी चाबी है, Hallelujah. हालेलुया, Because in the book of John, क्योंकि Johanna, यूहन्ना की अंजील में in the letter of John, और यूहन्ना के हाथ में so it is written, लिखा है, the anointing he gave unto you. वो मसा जो तुम्हें खुदावन की तरफ से तुम्हें हुआ है, तुम्हें आप सिखाएगा. तुम्हें जरूरत नहीं कोई तुम्हें सिखाए. There is a certain anointing और कुछ खास किस्म के मसा हैं God placed upon your life जो कि खुदा आपकी जिंदगी पर देता है to use you, कि वो मसा आपको इस्तेमाल करे, to use you, कि वो आपको so that इस्तेमाल God करे, use you, ताकि खुदा आपको इस्तेमाल करे, and He give you anointing और वो आपको मसा देता है to change your family, कि आप अपने खानदान को बदलें, to change your house, अपने घर को बदलें, to change your city, और अपने शहर को बदलें, to change your workplace. और आपके काम करने की जगह को This बदलें, is called an anointing. और इसको हम कहेंगे एक मसा। But today I pray for you. और आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा, Let God give you the key of an anointing, और खुदा आज आपको मसा की चाबी दे, because the God has a plan for your life. क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए खुदा का एक मकसद है। I pray to God today. और आज मैं खुदा से आपके लिए दुआ करूंगा, Let the Father of light और नूर के बाप release His anointing upon your children and upon your family. और आपके खानदानों पर और आपके बच्चों पर खुदा उस मसा को भेजे, That God appoint you to do on this earth planet. और आप वो काम कर सकें जिस काम के लिए इस धरती पे बुलाए गए हैं। Father, I pray in the mighty name of Jesus. और यीशु बाप के नाम से मैं दुआ करता हूँ, बाप यीशु के नाम से. Father, in the mighty name of बाप Jesus. यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, In the life of your people, और तेरे लोगों की जिंदगियों में, let the second key activated. और जो दूसरी चाबी है मसा की वो एक्टिवेट हो। Let the God खुदा, whom I serve और जिसकी मैं खिदमत करता हूँ, answer them, इनको जवाब दे, because key is an answer. क्योंकि जो चाबी है वो एक जवाब है। I declare, और मैं बोलता हूँ आपकी let the जिंदगी पर, second key of an anointing, और दूसरी चाबी जो है मसा की, let this key work for them और ये चाबी आपकी जिंदगियों में काम करे, in the mighty name of और Jesus. यीशु के नाम से, In the mighty name of और Jesus. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Now listen, सुनिएगा, why there are certain things are not working. और क्यों है कुछ खास किस्म की चीजें काम नहीं कर रही? You missed a key, क्योंकि आप चाबी को खो चुके हैं, which is an anointing. जो है एक मसा। Why you are worshipping in the church, क्यों आप चर्च में जब स्ताइश करते हैं, the people are not receiving something. क्यों लोगों को कुछ नहीं मिल रहा? There is a missing thing which we call the anointing of और God. कुछ मिसिंग है, कुछ खो चुका है जिसे हम कहेंगे मसा। In the temple of God, और खुदा के घर में in the Old Testament, और पुराने there हदनामे के was a मुताबिक, special group of the worshippers. और हम दो स्ताइश करने के लिए खुदा की तमजीद करने की खास किस्म के लोग होते थे। So
Listen now. सुनिएगा, There are special people और कुछ खास किस्म के लोग who do the special work of God. और खुदा के लिए वो खास काम करते थे। If you are stuck in your life, और अगर आज आप अपनी जिंदगी में रुक चुके हैं, if you are stopped by devil, और अगर आप चुराए गए हैं शैतान की तरफ से, if you are stopped by devil, और शैतान की तरफ से रुक चुके हैं, if you are sick, और अगर आज आप बीमार हैं, if you are in trouble, और अगर आप मुश्किल में हैं, in the depression and stress and anxiety, और अगर आप जहनी दबाव से लड़ रहे हैं, and you are in the problems, और आप मसाइल में हैं, you need anointing आपको जरूरत है मसा की, to change your situation. और आप ताकि आप अपने हालात को बदलें। So today I pray for you. और आज मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, Let God bless your life और खुदा आज आपकी जिंदगियों को and बरकत open दे, your mind और अपने जहनों को to खोलिएगा, understand the anointing और of God. खुदा के मसा को आप ले सके In the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Keep sharing this. और ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के इस पैगाम को शेयर कीजिएगा, Share with your family. और अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, और अपने प्यारों के साथ, Share with your close people. और जो लोग आपके करीब हैं, Share this teaching with them. और ये टीचिंग उनके साथ बांटे, And also follow our church page, और हमारे चर्च के पेज को फॉलो कीजिएगा, Light Church Ministry, लाइट चर्च मिनिस्ट्री on the Facebook, फेसबुक पर भी on है, the YouTube, यूट्यूब पर भी है, and you will surely receive something from the Lord. और आप खुदा से इस बात में कोई शक नहीं बरकतों को मौसूल करने वाले होंगे। What you are desiring, और जो कुछ भी आज आप ख्वाहिश रखते हैं, let God grant it और खुदा आपके लिए करे, according to the will of God. और खुदा की मर्जी के मुताबिक, In the mighty name of Jesus, और यीशु मसीह के कादर जलाली और बबरकत नाम से। I speak peace. और मैं बोलता हूँ अमन और सलामती, I speak peace into your life. और मैं बोलता हूँ अमन और सलामती आपकी जिंदगियों पर, Shalom. और शालोम। See you. God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Shalom. शालोम।